guys, welcome to my channel. I hope you are all doing good and we are also doing great. So in today's video we are going to continue our series, that is your baby's growth and development at 6 months. So let's get started. So yeah, now your baby's 6 months. So can you believe that you are halfway to your baby's first year? So much has happened in the past 6 months. You have seen your baby grow from a little newborn to a smiling 6-month-old baby. So now many new developments will happen, like sitting up of your baby, his babbling, and also starting solid foods, the most important change in the baby's life. Because the 6 months he was only on feeding milk, but now he will get a new taste by starting solids. So yeah, let's see that what more can you expect from your 6-month-old. So yeah, 6 months is a major accomplishment and you should congratulate yourself for that. And also some people celebrate 6-month birthday. Even we did celebrated Nitya's 6-month birthday. We cut the cake and we did decorations and all. So yeah, it's a big accomplishment because अब बहुत सारे changes आते हैं baby के अंदर and you have to be proud of yourself कि आपने baby को 6-month-old कर दिया and you are just halfway to his or her first birthday. So yeah, go ahead with any celebrations you want to do, because these are all the memories for your baby to show him when he'll grow up. So now let's see some of the developmental milestone which your baby will cross in this month. So now at 6 months your baby will most probably be able to sit with support. Also there are exceptions, कई बच्चे 7th या 8th month तक ये चीज सीखते हैं, but yeah, जो एक developmental milestone है 6 month पे ये है कि your baby will start sitting without support. Then he will start to roll from front to back and back to front. अगर आप उसको टमी पे ऐसे पीछे करके लिटाओगे तो वो अपने आप ही रोल हो जाएगा फ्रंट में, एंड इवन अगर वो सीधा लेटा है तो वो अपने आप ही अपने टमी पे रोल भी हो जाएगा. Yeah, so now your baby will try to crawl. अब वो क्रॉल करने की कोशिश करेगा धीरे धीरे. कई बेबी कर भी लेते हैं बाय 6 मंथ, बट या ही विल ट्राई. अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो वो ट्राई जरूर करता है क्रॉल करने का. He'll make specific sounds, like if he's happy he'll make happy sounds, if he's frustrated he'll give angry sounds. So language development अब काफ़ी हद तक grow हो जाएगी इसकी. He will respond if someone is a stranger. अगर वो familiar faces देखेगा तो he will smile and he'll be comfortable, but अगर वो कोई stranger को देखेगा तो he may show his response by maybe crying or by showing a scary face like that. So now babies likes to look in the mirror. अगर आप उसको मिरर के सामने लेकर जाएंगे तो उसको लगेगा कि सामने कोई और पर्सन है, बिकॉज अभी उसको ये नहीं पता कि वो वही है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा. He will try to talk, he will try to make different sounds, he will smile by looking in the mirror. So yeah, babies will enjoy looking in the mirror by 6 months. अब वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करेगा. अब उसको पता लग गया कि मेरा ये नाम है. जैसे ही कोई वो नाम लेगा तो he will respond back, he will smile or he will look back to you. So this is also a very fun thing. So now the most important thing at 6 months is you can start solid foods now. हमने पहली वीडियोस में ये बोला था कि अगर आपको 5th मंथ में भी लगे कि बच्चा सॉलिड फूड्स स्टार्ट करने के साइंस दिखा रहा है तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर एंड स्टार्ट. बट अगर वो साइंस अभी आपको नहीं दिखे थे तो बाय 6 मंथ अब यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद द सॉलिड फूड्स. एंड या ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जैसे ही आपका बेबी 6 मंथ हो गया आपको सॉलिड स्टार्ट करने ही है. अगर आपको अभी भी लग रहा है कि उसने साइंस शो नहीं किए हैं तो इतनी कोई जल्दी नहीं है. यू कैन स्टिल वेट फॉर 1 मंथ मोर. तो अगर आपका बेबी सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहा है इन बिटवीन 5 मंथ टू 8th मंथ तो वो भी नॉर्मल है. अगर आपको नहीं लग रहा कि अभी वो रेडी है तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आप 6 मंथ बर्थडे अगले दिन से आपको देना ही है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बेबी. ईच बेबी इज डिफरेंट. So now the question is that what to start. So there are 2 options you can do. First is make your own baby food. See, nutritionists and doctors suggest कि अगर आप अपने बेबी को फ्रेश हेल्दी उसी टाइम एकदम से कुक किया हुआ फूड खिलाओगे तो ऑब्वियसली दैट इज मोर हेल्दियर. बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स कई पेरेंट्स जो हैं वो रेडीमेड फूड ही दे पाते हैं बिकॉज मे बी शॉर्टेज ऑफ टाइम और
मैनी रीजंस। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेक श्योर करना है कि जो आप खरीद रहे हैं रेडीमेड फूड, वो उसकी डेट वगैरह आपको अच्छे से चेक करनी है, एक्सपायरी डेट एंड ऑल, एंड आप उसको एक करेक्ट मेथड, करेक्ट क्वांटिटी में दे रहे हैं, देन इट्स नॉट एन इशू. So the best food to start is vegetable or fruit purees. You can just steam any vegetable or any fruit. See, in fruits I started with Nitya, I started apple puree, एंड उसको बहुत अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में, हालांकि बीच में उसने छोड़ दी थी, बट अब अगेन वो लेने लग गई है. यू कैन स्टार्ट विद बनाना प्यूरी. सो दीज आर गुड ऑप्शंस इन फ्रूट प्यूरीज. For vegetables, you can mash potato, you can give mashed peas. So there are many options. You can give avocado. So you just have to make sure कि आप कुछ भी देने से पहले उस fruit या vegetable को steam ज़रूर कर लें. So now the question is कि आपको अपने बच्चे को फीड किस पोजीशन में करना है. हमेशा मेक श्योर करें कि वो बैठा हुआ है तभी आप उसको खाना खिलाएं. इफ़ ही इज़ लाइंग डाउन तो आप मत दें, क्योंकि उससे वॉमिटिंग के केसेस हो जाते हैं. एक हाई चेयर आती है बच्चों की, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल चेयर पे बिठा सकते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट हो जब आप उनको खिला रहे हैं. देन आपको स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा गिराता बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से वो मिल्क ले रहा था, तो उसके आप एकदम से कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे नया, तो उसको मे बी वो पहले स्टार्टिंग में बाहर भी निकाले मुंह से, तो आप बच्चे के गले में आप विब्स बांध सकते हैं ताकि जो उसके कपड़े हों वो गंदे ना हो. So yeah, bibs you should definitely use while starting solids. Use a very soft spoon. इतना हार्ड स्पून ना हो कि बच्चे के मुंह में लग जाए. So you should use a very soft spoon. So अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ये रेकमेंड करती है कि आप अपने बेबी को, आप कोई फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 3 दिन तक कंटिन्यू रखें. ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन ये दे रहे हैं, सेकेंड दिन आपने वो स्टार्ट कर दिया. इसके पीछे क्या रीज़न है कि उसको एलर्जी ना हो किसी भी फूड से. उसको अगर एलर्जी होगी तो आपको वो 3 दिन में पता लग जाएगी, एंड देन यू कैन स्टॉप गिविंग इट. फॉर एग्जाम्पल, आपने डे 1 पे एप्पल प्यूरी दी तो आप 3 डेज तक एप्पल प्यूरी ही दें. बट अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन कंटिन्यू. बट अगर आप कोई भी उसके स्किन पे रैशेस देखें या कोई भी नई उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आए, देन यू हैव टू स्टॉप गिविंग इट. सो start food and give it at least 3 days and then start with another food. So now one very important thing is कि आप जब भी बच्चे को कोई नया फूड आइटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज उसके टेस्ट बड्स अभी डेवलप हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन आपने फॉर एग्जाम्पल मैश्ड पोटैटो दिया बट उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो डोंट थिंक कि इसको तो मैश्ड पोटैटो अच्छा ही नहीं लगता, आप उसको देना भूल जाए, आप उसको देना छोड़ दें. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको कंटिन्यू रखना है. बच्चे का जैसे ही टेस्ट डेवलप होगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा. बट या अगर आप बार बार दे रहे हैं एंड स्टिल वो रिजेक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन थिंक कि या उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू अनदर फूड आइटम. एंड या नेवर फोर्स योर बेबी फॉर द फूड. अगर मान लो उसने 4-5 स्पून्स खा लिए हैं एंड उसका पेट भर गया है एंड वो अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा रहा है खाने में, एंड उसने अपना हेड ऐसे टर्न कर लिया जब आप उसके आगे स्पून ला रहे हैं, देन डोंट फोर्स. तो बेबी का पेट भर चुका होगा इसलिए वो अब नहीं खा रहा है. नेवर फोर्स, क्योंकि उससे क्या होगा, वॉमिटिंग होगी. हनी शुड नॉट बी गिवन टू द बेबीज अंडर एज 1. कीप दैट इन माइंड. कई लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि टीदिंग स्टार्ट होती है तो आपको अपने बच्चे को हनी देना चाहिए या हनी से उसको मसाज करना चाहिए माउथ में. नो, यू डोंट हैव टू यूज हनी अंडर एज 1. इट्स वेरी हजार्डस. Now, as your babies have started taking solids, don't think कि अब उनका मिल्क बंद कर देना है. Obviously 1 year तक आपको साथ में फीडिंग भी करवानी है. After 1 year, yes, you can reduce, but up to 1 year, you have to give either breast milk and or formula milk along with the solids. Remember that breast milk or formula milk provides them complete hydration what they need. चाहे सॉलिड्स उस चीज़ को पूरा ना कर पाएँ, बट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क उनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देंगे. सो यू डोंट हैव टू स्टॉप गिविंग देम मिल्क अप टू 1 year. So by 6 months babies do sleep throughout the night, but by chance अगर आपका बेबी नहीं सो रहा है तो डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज रॉन्ग. मे बी उसका एक अलग पैटर्न है सोने का, वो दिन में ज़्यादा सो रहा है रात को इसलिए उसको नींद नहीं आती, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. सो डोंट थिंक कि ये एक माइलस्टोन होता है कि बाय 6 months बेबी
स्लीप्स थ्रू आउट द नाइट, सबका अपना अपना पैटर्न होता है एंड धीरे धीरे वो बेबी अपने रूटीन में आ जाता है. बिकॉज ऑफ ग्रोथ स्पर्ट और मे बी टीडिंग और मे बी एनी इन्फेक्शन, मे बी उसकी नींद खराब हो रही है. So there no need to worry if your baby is unable to sleep throughout the night. So guys, now by 6 months your baby will start grabbing things. उनको कुछ भी पड़ा हुआ मिलेगा वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई गर्म चीज़ या कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ ऐसे ना पड़ी हो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं एंड बच्चा उस टाइम पे उसको मन करता है कि वो क्रॉल करे या फिर वो चीज़ों को ग्रैब करे. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि बच्चों के आसपास ऐसी कोई भी रिस्की चीज़ ना हो. एंड अगर बाई चांस ऐसा कुछ इंसिडेंट हो भी जाता है देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली अगर आपको लगे कि उसको कुछ चोट लग गई है और एनीथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, क्योंकि अब जैसे जैसे मंथ्स क्रॉस होंगे वैसे वैसे आपका बेबी और ज़्यादा एक्टिव होगा. तो यार डोंट फॉरगेट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद योर बेबी, क्योंकि अभी उसने क्रॉल करना स्टार्ट नहीं किया और एक बार वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा तो बस आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे. तो अभी वो अगर अभी शांति से बैठा हुआ है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, क्रॉल नहीं कर रहा, तो अभी आप उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं. ऑब्वियसली बाद में भी आप खेलेंगे, बट बाद में क्या होता है कि आप पीछे पीछे उसके ज़्यादा भागते रहते हैं. सो 6 months age is a very टर्निंग पॉइंट इन योर एज वेल एज योर बेबीज लाइफ, क्योंकि अब बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने लगेंगे धीरे धीरे. So yeah guys, that's it for this video. If you like this video, please hit the like button, please subscribe to my channel guys, and please comment if you have any suggestions or any questions. See you in the next video of 7-month baby's growth and development. So thanks for watching. Bye bye, take care, stay home, stay safe. Don't forget to subscribe.